ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲਾਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ NRI ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ NRI ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ NRI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ NRI ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ NRI ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ID ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मेरी हिंदी जो है इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हिंदी में प्रॉपर, क्योंकि हिंदी में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है, तो मैं चाहता हूं कि हाँ जी, तो आप समझते हैं पंजाबी, तो मैं इसीलिए आपसे पहले ही बात कर रहा हूं कि मैं पंजाबी में अगर बोलूं तो आपको कोई माइंड तो नहीं है? नहीं, कोई इतराज नहीं है, मेरे को समझ में आती है, मगर बोलने में भी मेरा थोड़ा दिक्कत है। मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा, नहीं आप आपकी बात मैं समझ लूंगा। बिल्कुल आप हिंदी में ही बात करें जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं। पंजाबी और सिख लोगों से बहुत प्यार है, बड़े मिलनसार लोग हैं, और आपने मेरे को बुलाया इतने प्यार से आपके टीवी चैनल पे, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों को जो भी ज्ञान देना चाहिए मैं अपना बांट लूंगा आपके साथ, और इससे जो है हमारा एक ताल्लुकात बना रहेगा और लोगों को ज्यादा इसके बारे में उनको नॉलेज मिलेगी, उनको जानकारी मिलेगी इस चीज। बिल्कुल जी बिल्कुल। राव साहब, पहले इसी सवाल पे जाते हैं कि आपने जो एक मुहिम छेड़ी हुई है, एक जंग छेड़ी हुई है, एक पिटीशन दायर की हुई है NRI के लिए कि NRI को जो है
जो चाहे वो अमेरिका रहते हैं, चाहे कुवैत में है, चाहे कहीं किसी देश में भी है, कैसे आपके दिमाग में ये बात आई? देखिए, मेरे भी कई रिश्तेदार हैं जो बाहर के देश में रहते हैं, और हमारे सारे दोस्तों, कई दोस्त हैं जो मेरे साथ कॉलेज पढ़े हैं, वो बाहर के देश में रहते हैं और वहां पे बस गए हैं, नागरिकता ले ली है, और मगर उनको अपने देश से जो प्यार है वो बिल्कुल कतई खत्म नहीं होता, और वो बराबर आना चाहते हैं देश में, जो है अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं अपने देश के साथ। जो लोग पंजाब से हैं, पंजाब में उनको खेतों से बहुत प्यार है, और वहाँ के लोगों से प्यार है, देश का हर मिट्टी से प्यार रहता है। तो इस वक्त इससे मैंने करीब 20 साल पहले, जब हमारा जो दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन जो जिस तरह से आज अब मैं दिल्ली में बैठा हूं और आप लंदन में बैठे हैं और यूके में बैठे हैं और आपके दर्शक भी मेरे को देख रहे हैं, ये जो चीज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा पूरा विश्व जो है काफी छोटा बन गया है। और मेरे ख्याल से हर फैमिली के अंदर कहीं पे भी भारतीय बसे हों, आजकल तो डेली व्हाट्सएप से और के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, फोन से हर एक अपने रिश्तेदारों से, बच्चों से, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से बात करते रहते हैं। तो जो एक दुनिया है वो छोटी बन गई है। अब आप कहीं पे भी रहो, आपका जो देश के साथ ताल्लुकात, आपके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात एक डेली बेसिस पे बना रहता है। पुराने जमाने में 20 साल से पहले जो है 30, 40, 50 साल में इतना अच्छा नहीं था, मगर आजकल है। तो वो जो चीज है वो बनी रहे और लोगों को सुविधा मिले रहे। अपना देखिए, ये देश जो है अपने माँ बाप की तरह होता है। आप अपने कहीं कोई और घर में बसे हो, आप अपने माँ बाप का घर तो नहीं छोड़ सकते, वो तो आपका ही घर है। इसी तरह ये देश हमारे सब भाई बहनों का है, जिन्होंने कहीं और जाके अपने रोजी रोटी के लिए कहीं और बसे हों और किसी चीज के लिए बसे हों, तो उनका भी देश है। ये देश उन्हीं का रहेगा और कभी उनसे अलग नहीं होएगा और उन्हीं के लिए रहेगा। इस चीज पे मैंने सोचा कानून, बिल्कुल इस चीज पे मैंने सोचा। हाँ जी, बोलिए। नहीं, इसकी फिर बात यह है कि एक हमारी उसमें जो है कानून के अंदर एक दिक्कत आई है कि जब भी कोई हमारे देश के देशवासी नागरिक दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं, तो हमारा देश का नागरिकता उनका एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो वो ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया तो ब्रिटेन के हो गए। तो वो जो चीज जो पहले दिमाग में थी हमारे हिंदुस्तानी सरकारों के अंदर कि वो तो छोड़ के चले गए, वो कोई और देश में रहते हैं, वहां के नागरिक है, अब ये जब भी आएंगे हम देखेंगे क्या करें क्या नहीं करें। वो चीज जो है वो पहले दिमाग में भी होता था और कानून में भी। उस चीज में बदलाव लाने के लिए, और हमारे भाई बहनों, जिस तरह से हम आप इतना प्यार से भाई बहन के तरह से ही बात कर रहे हैं, राखी के दिन भी बात कर रहे हैं, तो वो जो चीज बनी रहे, जिनकी इच्छा रहती है, उस चीज को बना के रखने के लिए हमने ये देखा कि डुअल नेशनैलिटी होना चाहिए। कोई भी हमारा देश में जाके कहीं और से नागरिक लेना चाहिए तो उनका अपना देश का नागरिकता नहीं खत्म होना चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। ये बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। राव साहब, अगर आपसे मैं पूछूं और कुछ बातें आपसे शेयर भी करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, जब सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी ये बात ड्यूल नेशनैलिटी की चली थी। पर इतना वो 10 साल वो उनकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही है, पर तब ये कानून लागू क्यों नहीं हो सका? क्यों इसमें इतना डिले? अभी 5 साल जो है बीजेपी की सरकार भी है, मोदी जी की सरकार है, तो कितना टाइम आपको हो गया कि आपने जो पिटीशन जो दायर की है कोर्ट में? देखिए, पिटीशन तो 2-3 साल पहले दायर किया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक वरिष्ठ पत्रकार, एक आप ही की तरह एक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एस वेंकट नारायण, वो प्रेसिडेंट है हमारे फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स क्लब के, बहुत ही माननीय पत्रकार है, उन्होंने डलवाया मेरे से, क्योंकि वो 60 देशों में घूम के हर जगह लोगों से मिलके देख के आए हैं। और हम ये जो है कई देश में, 70 देशों में डुअल नेशनैलिटी अभी लागू है, 70 देशों में। कई लोगों ने दूसरे, कोई भी अपना देश में से नागरिक चाहता है उनको वो छोड़ नहीं थे, वो ये नहीं बोलते कि आपकी नागरिकता आपके देश की खत्म हो गई है।
वो ये बोलते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप आइए जाइए, ये देश आपका ही है जितना कि दूसरों का है। आप कहीं पे भी बसे हो, आपके बच्चे भी आ सकते हैं, सबको लिए वेलकम है। हम खुले दिल से, खुले हाथों से आपको यहाँ पे आने की इजाजत देते हैं और आप कारोबार चलाने चाहिए। तो उन्होंने याचिका डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो लोग बाहर बसे हैं उन्होंने क्यों नहीं डाला। आप कह रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, तो आप उन संस्थाओं को, उन लोगों को, उन समूह लोगों को जो बाहर रहते हैं उनकी आप कम से कम एक मैं संस्था जिसके लिए अभी भी मैं उनको एडवाइस करता हूं, उनका वकील भी हूं, उसका नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब है पूरा विश्व का एक संस्था जिसमें भारतीय लोग बसे, भारतीय लोग हों, वो लोग सब मिलके हर देश में उनका समूह का वो है, गोपियो बोलते हैं उसको, भारतीय लोगों को समूह है जो बाहर बसे हुए हैं, वो सब उन्होंने एक बड़ी संस्था बनाई। ऐसी संस्था जो है जो भारतीयों का बाहर बसे हुए हैं उनकी संस्था आके याचिका डालना चाहिए, ना कि कोई भारतीय जो भारत में बैठा हुआ वो कह रहा इन सबका है करके उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया। तो मैंने कहा ठीक है, हम टेक्निकल पॉइंट जाते हैं तो हम भारतीय जो लोग हैं, समूह है जो भारत के रहने वाले जो बाहर बसे उनकी संस्थाओं का याचिका हम डालेंगे। क्योंकि क्या है, कोर्ट कचहरी में कई टेक्निकल बात चलती है, कई ये कानूनी बातें होती है, वो पूछते हैं जिसको तकलीफ हो रही है वो क्यों नहीं आ रहा है, आप क्यों उसकी वकालत कर रहे हैं, कोई पत्रकार है आप वकालत कर रहे हो, वो जो उनकी समूह क्यों नहीं आ रही, वो जो असली लोग हैं जिनकी दिक्कत हो रही है, जिनको पहुंच रहे हैं, जो समझते हैं कि वो अपने देश से जुड़े रहे, वो क्यों नहीं आए सामने। तो ये चीजें जो होती हैं ये कानूनी दावपेच के अंदर दिक्कत रह करती हैं। इसीलिए अभी कई देशों से कम 10-12 देश से लोग इकट्ठे हुए हैं, गोपियों वाले भी मेरे से बोल रहे हैं कि इस याचिका को फिर से शुरू करके फिर से इसको आगे बढ़ाए, हम लोग इसमें हस्ताक्षर करेंगे, हमारी संस्थाएं इसमें हस्ताक्षर करेंगे और हम लोग आके इस चीज के लिए लड़ेंगे, हम इसको मांगे अपने सरकार के सामने रखने के लिए हम तैयार हैं, हम खड़े हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा उसमें देर लग गया। अच्छा, दूसरी बात, अब सरकार जो अब मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल रही, आपने उस वक्त था, ये जो जोर जबरदस्ती उस वक्त पकड़ा 2000 के बाद, जब हमारे ये टेक्नोलॉजी अच्छा बढ़िया होने लगा और हम एक दूसरे से बात करने लगे, दिल्ली जुड़ने लगे, तो बंद धीरे धीरे चलता रहा। मगर क्या होता है, कानून के अंदर जो है हमारा जो है संविधान 1950 में बना और उसमें जो है संविधान के अंदर जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनकी 2 तिहाई बहुमत से हमारा सारे कानून के अंदर संशोधन आने लगे। उसके बाद जब संसद बनाए तो 2 तिहाई बहुमत जो है आपको लोकसभा के अंदर चाहिए होगा, 2 तिहाई आपको राज्यसभा के अंदर चाहिए होगा, और उसके बाद जो आपके राज्य के अंदर असेंबली बनी हुई है, पंजाब का हुआ, हरियाणा का, हर का 2 तिहाई बहुमत से इस चीज को सामने लाने पड़ेगी, जिससे हम वोटिंग राइट जो है, जब हम डुअल नेशनैलिटी की बात करते हैं, हम इसका यह मतलब कहते हैं कि आप जैसे नागरिक थे यहां पर और जैसे दूसरे नागरिक हैं, आपकी परिस्थिति वैसे ही रहेगी, आप बिल्कुल बराबर रहेंगे, आपको हर बारी वीजा के लिए दिक्कत नहीं किया जाएगा, आप अपनी संपत्ति कुछ भी खरीद सकते हैं, घर भी चला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना कारोबार चला सकते हैं, आपका वही दर्जा रहेगा जो इस देश के अंदर दूसरे नागरिक का है। डुअल नेशनलिटी 100% इक्वालिटी देगी, आपको हर चीज में देगी। तो इस चीज के लिए 2 तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है, ये वोटिंग राइट लाके तो कभी अभी कई सरकारों को 2 तिहाई बहुमत सारे देश में उनका सरकार नहीं है, और हिंदुस्तान में भी मतलब लोकसभा में भी है या राज्यसभा में, मेन पार्लियामेंट में भी उनकी 2 तिहाई बहुमत नहीं है, और 2 तिहाई होगी भी उसमें भी लोग कई दिक्कत करते हैं। तो ये काफी राजनीतिक दिक्कत रहती है। उस चीज को मेरे ख्याल से जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बहुत तेजी से और जोर से कर रही है। सुषमा स्वराज जी को आपने देखा होगा, आपके पंजाब हरियाणा की थी, उनको हर नागरिक को चाहे कहीं के भी हो, और ज्यादातर पंजाबी दिक्कत जहां उनको देखा कि औरतों को शादी करके छोड़ दिया, उनको कुछ ऐसे दिक्कत, तो उनका बिल्कुल दिल पिघलता था और वो बहुत दुखी होती थी औरतों के लिए की भी। और उन्होंने भी बहुत ये किया कि हमारे सारे एम्बेसीज को उनको बोला, एक मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स, मतलब
विदेशी लोगों की के लिए एक पूरा यहाँ पे आपको मालूम है या नहीं मिनिस्ट्री बना हुआ है आज के दिन पर। अच्छा जी। और हर चीज पे ये ध्यान दे रही। बिल्कुल। तो तो राव हमारे साहब, एक चीज जो है, एक चीज कई लोगों को क्लियर करना यहाँ पे बनता है कि अगर ड्यूल नेशनैलिटी अगर मिल जाती है तो जिन लोगों के पास ओसीआई है तो वो फिर क्या करेंगे? उसको ड्यूल नेशनैलिटी के लिए देखिए अप्लाई करना पड़ेगा कि? ओसीआई का नहीं, सुनिए, ओसीआई का मतलब मेरे ख्याल से तो करने की जरूरत, एक एप्लीकेशन तो जरूर डालनी पड़ेगी, मगर जो जिनके पास ओसीआई है उनको लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ओसीआई का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई का पूरा फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन, मतलब जो हमारे बाहर के देश में इन भारतीय नागरिक है उसका वो है। मगर ओसीआई के अंदर फ्री आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं, आप आते जाते रहिए, आप यहाँ पे संपत्ति खरीदिए, आप अपना काम कारोबार चलाइए, आप जो भी करना चाहे दूसरे नागरिक की तरह कर सकते हैं, केवल आपको वोटिंग राइट नहीं मिला। तो ओसीआई वाले को डुअल नेशनैलिटी में अपग्रेड करने के लिए काफी आसानी है, क्योंकि उनके पास, भारत सरकार के पास उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन है और उनको सिर्फ हक देने की बात है, वो उनके लिए आसान है। मगर जिन्होंने ओसीआई ने लिखा, ओसीआई उसको लेना है पहली बात तो जो भारतीय नागरिक नहीं है, जिन्होंने विदेशी क्या ब्रिटेन का हो, कनाडा का हो, यूके यूएसए का हो और फ्रांस, किसी का भी देश का नागरिकता ले ली हो, उसी को ओसीआई लेना है। जिन्होंने भारतीय पासपोर्ट रखा हुआ अपने पास, वो तो भारतीय नागरिक है ही, उनको कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो पोस्टल बैलेट भी कर दिया, आप एम्बेसी में जाओ वोट दे आओ। तो भारतीय जिन्होंने अपना नागरिकता छोड़ के दूसरी देश की नागरिकता ली है, उनको ओसीआई कार्ड लेने की जरूरत है और उनको फुल डुअल नेशनैलिटी मिलने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे अभी कोई आदमी, कई लोग 15 साल 20 साल इंडियन पासपोर्ट रख के दूसरे बाहर की देश में रह रहे हैं, उनको इच्छा नहीं है, अपने देश का पासपोर्ट छोड़ने की इच्छा नहीं है, वो रखना चाहते हैं और वो उनका रेजिडेंट परमिट हो गया, ग्रीन कार्ड हो गया, कुछ हो गया, लेके रह रहे हैं। तो उनके लिए यदि वो दूसरी देश की नागरिकता लेना चाहें, जब डुअल नेशनैलिटी आता है तो उनको दूसरे देश की नागरिकता लेने में खुशी और आसानी होगी और उनका अपना देश का नागरिकता बना रहेगा। तो उनके लिए भी एक तरीके से ये आसान है, जो इंसान दूसरों देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, ताकि वो ये समझे कि मेरे को मेरी देश की नागरिकता खत्म नहीं हुई, उनके लिए भी ये आसान है, और जिन्होंने ले लिया है उनके लिए भी बहुत ही आसान है। ये चीज बहुत अहम चीज है, बच्चों के लिए अहम चीज है, क्योंकि हर एक आदमी अपने बच्चों के लिए सोचता है मेरे बच्चे मेरे देश से जुड़े रहे, उनका भी वहां पे कोई भी बाप दादाओं का जायदाद है तो जायदाद में वो बने रहे, या कोई घर खरीदना चाहे। देखिए कई लोग बुजुर्ग जब हो जाते हैं, उम्र 60-70 में हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं जाके इंडिया में रहे। बिल्कुल। मेरी वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स भी वहां अमेरिका रहते थे, उन्होंने रिटायरमेंट में 80-85 में इंडिया आके वो रहने लगे। तो कई लोग सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट जाके इंडिया में रहे और हमें कोई दिक्कत ना मिले, उस वक्त भी उनको पूरी सहायता मिलेगी और बिल्कुल भारत या नागरिकता की रहेंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि हम बाहर के देश के हैं, हमारे को कहीं और किसी का पासपोर्ट मिला हुआ है, हम यहाँ पे अनजान हो गए हैं या बाहर हो गए। उनके लिए भी काफी ये सहायता है। ये चीज हर एक भारत जिन्होंने पासपोर्ट दूसरा ले रखा है उस सबों को ये आके बोलना चाहिए, हमारे को ये हमारे देश की भारतीय अपनी नागरिकता छोड़नी नहीं है, हमें पूरी नागरिकता चाहिए और हम भी देश के लिए हम करेंगे, हम हमारा यहाँ योगदान बहुत रहता है, हमारे बच्चों का भी रहेगा, हम रहेंगे। बिल्कुल जी, जिवें कि आप जी ने दसिया कि एक चीज होर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ OCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ NRI ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ NRI ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ
कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं, अधिकार तो एक जगह अधिकार हो गया। अब दूसरी चीज जो मैं एक चीज और इसमें आगे लड़ाई ये भी करना चाह रहे हैं कि ताकि हमारे कानून के अंदर जो भी NRI के केस हों जो बाहर के देश में रहते हैं, उनको एक तो कोर्ट कचहरी के लिए भागे दौड़े दूर से आने की जरूरत ना पड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका बयान लिया जाए, उनकी कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो, कोई उनसे पूछताछ करना हो, कुछ भी हो, सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर ले। दूसरी चीज, उनको जो है उनका केस देर ना लगे और जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि वो बाहर रहते हैं। उनके लिए थोड़ा सा एक सेपरेट जो है जो कानून के अंदर, कानून के कोर्ट कचहरी में भी उनको जो है थोड़ा वो मिले, प्रेफरेंस मिले, और उनको जो है उनकी केस भी अलग से देखे जाएं। उनके लिए अलग उसी कोर्ट के अंदर एक कोर्ट और या एक जज असाइन किया जाए जो NRI की केसेस देखें। आपके देखें तो पंजाब में, हरियाणा हाई कोर्ट में और पंजाब कोर्ट में इतने केस पड़े हुए हैं जायदाद के बारे में, शादी की, उनके डिवोर्स के बारे में, बच्चों के लिए, और जो मेंटेनेंस होता है जो औरतों को जो शादी डिवोर्स करके छोड़ देते, इतने केस पड़े हुए हैं कि कोई मतलब उनका जल्दी हल होना में काफी टाइम लग रहा है। उस चीज को भी खत्म करके एक अलग से कोर्ट अपॉइंट होके उनका ये सारी चीजें जो हैं जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और डुअल नेशनैलिटी आती है तो बिल्कुल ही और भी इस चीज में जो है उनके हक जो है NRI लोगों के, उनके हक और भी मजबूत हो जाएंगे, और बराबर हर एक को उन चीज में उनको जो है जो इज्जत और जो उनका पे इम्पोर्टेंस है और जो उनको हक अच्छी तरह से देना है वो सब वो भी हो जाएंगे। और इस संदर्भ में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ये प्रवासी दिवस मतलब जो बाहर के देश के लोग रह रहे हैं उनके लिए एक पूरा जो है 26 जनवरी के टाइम पर, हर जनवरी में मैं लास्ट ईयर गया था वाराणसी में और बनारस के में, इतना बढ़िया वहां पे हुआ 3-4 दिन का एक वो प्रोग्राम, और उसमें लोग अपना समस्याएं भी बताते हैं और घूमते भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनका जैसे कुंभ मेला में जाना हो, कहीं घूमना हो, कई अलग शहरों में उनका जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लोग हजारों के तादाद में हर देश से कोई कम से कम 70-80-100 देशों से लोग आते हैं। एक हफ्ता 10 दिन रह के अपना कई लोगों से, मंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। तो ये प्रवासी दिवस के एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन है, एक मिलने का मौका है और देश में देखने का, और बाहर के देश अपने ही बरादरी के लोग दूसरे देशों में जो रहते हैं उनसे मिलने का मौका है, और जानने का, अपने जानकारी करने का कि हमारे कितने हक है, क्या क्या नया चीज हमारे लिए मिल रहा है। इस चीज को देखने के लिए मैं आप लोगों को ये निमंत्रण देता हूं, जो आपके जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हुए, जैसे आपकी कोई सोसाइटी या एसोसिएशन हुई जिसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, उनको भी आने के लिए बोलता हूं। अपने यहाँ लोगों से मिले और ये प्रवासी दिवस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स के अधिकारियों को मिले, और कई लोग बिजनेसमैन अपने आते हैं उनसे मिले। तो ये देश से जुड़े रहने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, और अपने हकों को आगे बढ़ा के उन चीजों पे सुनने का, बात करने का मौका भी मिलता है। और इसमें कोई बात नहीं है, हमारे भाई बहन उतने ही हमारे देश के पुत्र हैं और देश उनका, जमीन उनका है, और ये मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये उनको जुड़ा रहना चाहिए। और मैं इनको कहता हूं, देश वाले पूरे दिल से और पूरे खुले हाथों से उनको वेलकम करते हैं, और आप लोग को भी आना चाहिए, और ये और भी बढ़ता रहेगा और भी अच्छा होता रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ NRI ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRI ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੱਚੋਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਪਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹਰਦਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਹੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਚੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NRI ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ। NRI एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, मतलब NRI और प्राइवेट, मतलब जैसे ये अंतरराष्ट्रीय कानून होता है, जो लोगों के बीच का कानून होता है उसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। जो देशों के बीच में कानून होता है अंतरराष्ट्रीय, उसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये हम लोगों ने, कई वकीलों ने, 5-7 वकीलों ने मिलके एक रिपोर्ट बनाया, और इसको हमारे को जो है विदेश मंत्रालय ने हमसे कहा कि आप लोग इस चीज में माहिर हो, आप एक्सपर्ट हो इंटरनेशनल लॉ में, विदेशी कानून में, आप ये सब चीजें देखिए। जो हमारे NRIs को जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में अलग अलग तरीके से, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे डाइवोर्स का हो, चाहे बच्चों का कस्टडी हो, चाहे ये डुअल सिटीजनशिप की बात हो, और भी कोई चीजें इस तरह से रहे कि एक देश और इंडिया में कोई रहे, वहां पे रहे, जमीन की बातें हों, ये सब चीजों को लेके हमने ये किताब बना के, एक रिपोर्ट को किताब की तरह से हमने जो है बना के गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो विदेश मंत्रालय को बना के दिया। ये 10-12 ये पूरा हो गया, आपको 12 साल हो गया, 10-12 साल। उसके बाद इसके ऊपर कई चीजें अमल करते रहते हैं, और भारत सरकार, हम जैसे जो अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हमसे सलाहकारी लेती हैं, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज में वेबसाइट बनाया जहां पे कई कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हो, आप एम्बेसी में भी दर्ज कर सकते हो कि आपका साथ ये दिक्कत है, ये परेशानी है। ये सब चीजें हमने एक पूरा 500-600 पन्नों का किताब है, बहुत डीप स्टडी है। ये चीज के आगे बढ़ चुका है, और आगे भी और अच्छा सुविधा होएगा। कहीं आप ये ना सोचे कि देश में आपके लिए काम नहीं हो रहा, आपका सोच विचार नहीं हो रहा, मगर है
वकील हैं देश के अंदर और गवर्नमेंट के साथ हम जुड़े हुए हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारे भाई बहन तो एक ही होता है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। ये जो है जो देश के साथ पुत्र हैं, देश के जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका देश है। कोई भी सर राजनीति, कोई भी, मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी सरकार आए, आप एनआरआई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उनका योगदान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो, उनको खुले हाथों से, खुले दिल से आने की कि कभी उनको ये ना लगे कि उनका देश में कोई कमी है, या उनकी देश के अंदर उनका इतना इज्जत नहीं है, दर्जा नहीं है। कभी सोचने वाली बात ही नहीं है। आजकल तो सारी दुनिया एक है। बिल्कुल राव साहब, एनआरआई की जो प्रॉब्लम होती है ना, एनआरआई का जो दिल है ना, उस वक्त टूट जाता है जब वो कानून से लड़ाई लड़ते हैं। तब उनको ये महसूस होता है कि ये देश हमारा रहा ही नहीं है, जिस देश में हम पैदा आपको मैं एक सच्चाई में बताता हूँ, आपको एक सच्चाई में बताता हूँ। आज के दिन पर चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कोई ना कोई फैमिली मेंबर बाहर के देश में है। बिल्कुल। जो सरकार चलाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे फिल्म वाले, कोई भी है, हर एक का कोई ना कोई उनका फैमिली का, उनका सदस्य बाहर के देश में है। और आज के दिन पर जो भी पढ़े लिखे और ऊंची पद पर और ऊंची जगह पे हैं, उन सबको ये दिक्कतों के बारे में मालूम है। हर आदमी सोचता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे फैमिली के हैं, उनको जब आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हम उनसे डेली बात करते हैं। मेरी बहन अमेरिका रहती है, मेरे कई रिश्तेदार, दोस्त, हर डेली हम बात करता हूं। मैं खुद एज वकील मैं हर एक देश में बात करता हूं, कई लोगों से बात करता रहता हूं, और आना जाना कई बना रहता है। मेरा एक दोस्त है, हर महीने आता है अमेरिका से, उसका यहाँ 20 साल से कारोबार चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खुशी से आता है। कभी कभी 1 महीना रह के जाता है, 1 महीना इधर 1 महीना उधर। वो इतना खुश है हर महीने में आने के लिए कि वो एक जगह वहां पे नहीं रहना उसका मन बनता है, क्योंकि वो साल में। क्योंकि यहाँ पे एक और बात पैदा होती है कि जिस तरह की ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਨਆਰਆਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ बहुत खराब होएगा। आपको मैं एक चीज इस माध्यम से, आपने मेरे को बुलाया, रंजीत सिंह जी ने, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये मेरा फील्ड का है। मैं ये सोचता हूँ हमारे भाई बहन जो बाहर के देश में रहते हैं उनको कोई डरने की जरूरत नहीं। आजकल तो बहुत ज्यादा ही वो हो गया है कि इस चीज पे लोगों को अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, ध्यान जैसे लोगों को अंदर बात ये हो गई है कि ये समझ जाते हैं कि आजकल इंडिया के अंदर वो बात नहीं है जो पहले था। अब हमारे को इज्जत है, हमें आने की वो पूरा हक है, और लोग यहाँ पे अधिकारी लोग, पुलिस लोग जो भी होते हैं, उन सबको मालूम है कि हमें उनको बिल्कुल बराबरी के साथ और उनके हकों के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाना चाहिए कि भारतीय नागरिक हो, भारत के। आजकल तो वो चीज काफी खत्म हो चुकी है। और जिस तरह से आप ये ऐसे प्रोग्राम कर रहे हो और अपने लोगों को ये बातें में अवेयरनेस दिखा रहे हो, इसकी चीजें जानकारी दे रहे हो, उससे जो है हमारी आपकी आवाज भी सबको सुनाई देगी। आपका साथ एक साथ गुट रहेगा। आपके जो हमारे लोग जो भाई बहन बाहर हैं उनको ये समझ में आएगा कि ये हमारे हक बने हुए हैं, कोई हमें इसको लेके हमें डरा नहीं सकता। हम वहां यहाँ जाएंगे तो हमारे को कोई डर नहीं है। जैसे हम अपने देश दूसरे देश में रहते हैं उस तरह से इधर रहते हैं। ये चीज जो है मैंने इसीलिए प्रवासी दिवस का भी आपको जिक्र किया। ये चीज जो है आज बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के ध्यान में आ रहा है, और हर एक आदमी अपना देश और अपना समझ के
और ताल्लुकात बना के रखना चाहिए। कुछ तो ये बात है कि आप जिसके साथ भी हो, आपके भाई दोस्त बहन लोगों के साथ जरा आजकल तो बहुत ही आसान हो गया है, जिस तरह से हम आप कई दिनों से एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, उसी तरह से ताल्लुकात रहते हैं। तो कोई भी चीज के लिए उनको अपना ताल्लुकात बना के और उस चीज में उसमें ज्ञान लेके, आजकल तो गूगल में भी इंटरनेट में भी सब चीजों का ध्यान रहता है। कोई होटल चाहिए हो, रहने का, घूमने फिरने का काम करना हो, या कुछ खरीदना हो, या कुछ और चीज भी है, आजकल तो बहुत ही आसान हो गया है और इसमें सोचने वाली और डरने वाली कोई भी बात नहीं है। रंजीत सिंह जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। और ये किताब जो हमने लिखी है, विदेश मंत्रालय में इसका बहुत बड़ा ध्यान है। कोई सोचने वाली में नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें अपना देश समझ के आप यहाँ पे जो भी करना हो, जब भी आना हो, आइएगा। कोई बिल्कुल। राव साहब, एक आखिरी सवाल है इस बुक के लिए कि इस बुक को अगर किसी आम आदमी ने, कि ये आप जो एडवोकेट हैं, ये उनके लिए ही है कि जहां आम आदमी भी इसको ले सकता है अगर लेनी हो? आम आदमी पढ़ेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। हाँ जी, बोलिए। अगर वो लेना चाहते हो तो वो कहाँ से इसको ले सकते हैं? क्या इसकी प्राइस क्या है, परचेस प्राइस क्या है इसकी, और इसको कहाँ से? ये जो पूरा कानून के बारे में है, ये ज्यादातर वकील लोग ही इसके बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। आम आदमी को इतना समझ में आना नहीं, जिसने वकालत किया उसको ये समझ पाएंगे। और ये विदेश मंत्रालय ने इसको पब्लिश किया है। इसका कॉस्ट 450 रुपए था उस जमाने में, आजकल रीपब्लिश किया है। ये बुक अवेलेबल भी नहीं है होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बारी कुछ कॉपी बन जाते हैं तो उसके बाद जो है फिर से रीपब्लिश नहीं करते। मगर मैं ये जरूर आपका ये सवाल को लेके मैं विदेश मंत्रालय को लिखूंगा कि इस किताब की ज्यादा से ज्यादा कॉपी अवेलेबल हो, ताकि हमारे थोड़े से वहां पे भी, हमारे यूके में भी इतने लॉयर्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं। अभी सरोज जायवाला करके यहाँ पे आया था, मेरे पिताजी का भी दोस्त था, उन्होंने अपनी किताब लिखी और यहाँ पे किया उसका। तो उनको भी फायदा है। कोई भी वकालत पढ़ ले, चाहे इंग्लैंड का ही हो, वो समझने के लिए। ये जो राव साहब, ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि यहाँ पे इंग्लैंड में जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर उनको ये जानकारी, इंडिया कानून की जो जानकारी मिल जाए, तो वो अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, उनके हक जो है वो इजीली समझा सकते हैं कि आपके ये राइट्स उधर हैं, आपके राइट्स मरे नहीं है। आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जाके वहां पे अगर ड्यूल नेशनलिटी मिलती है तो आप इस देश के भी नागरिक हैं, उस देश के भी नागरिक हैं। जो यहाँ पे कानून फॉलो करते हैं, आप वहां पे भी जाके कानून फॉलो करके वहां के सिटीजन जो आपको वहां की मिलती है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये बुक जो है, चाहे आपकी कह रहे हैं कि एडवोकेट की जो लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको ही समझ लगती है, ये मेरे ख्याल से उसको ये कह सकते हैं, ये इजी वे, कि जैसे एडवोकेट को बुक पढ़नी पड़ती थी, कौन सा लॉ के हिसाब से केस करना पड़ेगा, कौन से लॉ के, मतलब कि ये इजी हो गया। बिल्कुल 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 इजी हो गया। तो इसीलिए कि ये है कि बच्चे जो यहाँ के बच्चे हैं वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि गूगल में रिसर्च करके सब कुछ मिलता है वहां पे, तो इजी है कि अगर कोई भी सेक्शन कोई भी है, या कोई धारा जो भी है कानून के हिसाब से है, वो उसकी जो पड़ताल है वो कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फिर वो अपने माँ बाप को इजी वे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर ये बुक किसी ने लेनी हो तो कहाँ से मिलेगी, पर आपने जो जवाब दिया, पर थोड़ा सा ये भी करें कि जैसे आपने पिटीशन एनआरआई के लिए, ड्यूल नेशनलिटी के लिए किया, कि ये भी जो इंटरनेशनल लॉ की बुक है वो भी जो है मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इस पे हक सबका होना चाहिए, क्योंकि सबको जो कानून है, सेक्शन है, जो लॉ है, सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो सेक्शन में कौन सा लॉ आता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी आपने मुद्दा इसको उठाया। ये जो है, मैंने इसके बारे में भी ध्यान नहीं दिया, और आपसे इसमें बात करने का एक बहुत बढ़िया इसमें बात निकला है कि ये किताब जो है हर एक को अवेलेबल। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखूंगा कि अपने एम्बेसी के द्वारा वहां पे अवेलेबिलिटी का कराएं,
और लोगों को वहां से किसी को लेना हो उसका सूचना दें कि ऐसी किताब अवेलेबल है, आप इसकी कॉपीज ले सकते हैं करके। मैं नॉट ओनली लंदन के अंदर मगर हर देश के अंदर जो हमारी एम्बेसी हैं उनको मैं बोलूंगा, फॉरेन मिनिस्टर को, ये किताब अवेलेबल रहे और उनका सूचना सबको मिले, ताकि वहां के लोग जो हमारे बसे हुए हैं, हमारे भाई बहन हैं और उनकी बच्चे हैं, फैमिली है, इसको पढ़ सके, इसका ज्ञान ले सके, इसकी जानकारी ले सके, ताकि उनको अच्छी तरह से इस चीज का उनको समझ में आ जाए कि उनके देश के अंदर उनके कैसे हक हैं, कैसे वो उसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे उसको अमल कर सकते हैं, ताकि उनको जो भी इच्छा रहती कि अपने देश से जुड़े रहने के लिए उनको पूरा पूरा उसका फायदा मिले। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल। आपके द्वारा मैं जरूर उसके आपका ये सुझाव जो है मैं पहुंचाऊंगा देश के विदेश मंत्री। बहुत बहुत थैंक यू आपका का जो आपने इस चीज को चीज को इतनी इज्जत बख्शी कि आपने ये जो आपने बोला अभी कि मैं इस चीज को मिनिस्ट्री को लिखूंगा कि ये बुक जो है अवेलेबल जो है हो, सब जगह अवेलेबल हो। तो लास्ट में यही मैं कहना चाहता हूं कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? हाँ जी, ये इस प्रणाली को फिर से, अभी तो हमारे जो है कोर्ट बंद हैं आजकल, और ये थोड़ा सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो इम्पोर्टेंट जो छोटे तुरंत जिसे चाहिए हो उनका पर ध्यान दे रहा है। अभी कोर्ट खोलने में 1-2 महीने लगेंगे, तो पूरा लेके मैं सोचता हूँ 1-2 साल के अंदर इस चीज के एक सुझाव वो निकाल आ जाना चाहिए इसके अंदर। और सरकार मेरे ख्याल से जो इनके मन में झिझक है, तो हम जैसे कानूनी एक्सपर्ट जो हैं उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको समझाते हैं किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार को जरूरत पड़ती है क्योंकि सरकार खुद जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून और ये चीजों में उनको इतना समझ नहीं है। तो हम ये चीज जो है मेरे ख्याल से 1-1.5 साल 2 साल के अंदर जो है निपटाना के लिए मेरे से इससे ज्यादा समय लगने की जरूरत नहीं है। और मैं आपने मेरे को इस पे बुला के फिर से इस चीज को बहुत इसके ऊपर ध्यान दिलाया और मेरे को याद दिलाया, इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद रंजीत सिंह जी। और आपने बहुत अच्छे सुझाव और अच्छी चीजें जो सरकार को अमल करना चाहिए। आप एक बड़ी चैनल है, आप सारे सिख जो सारे देश विदेशों में सिख लोग जो है उनके साथ आपका चैनल जुड़ा रहता है। इस एज ए पर्सन फ्रॉम योर चैनल मैं ये सुझाव उनके पास पहुंचा के और इस चीज को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों के अंदर जो है अपने देश से जुड़े रहने की खुशी की बात है। तो मैं बहुत धन्यवाद आपका करता हूं अजय कि आपने इसमें बुलाया। बिल्कुल 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 धन्यवाद तो हमको आपका करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है जो मेरे अभी जो टेक्स्ट मैसेज आया, उन्होंने पूछा है कि अगर आपका जो पिटीशन आपने दायर किया, अगर सरकार बदल जाती है, कोई और सरकार आ जाती है, तो उसमें इस चीज को फर्क तो नहीं कोई पड़ेगा? नहीं कभी पड़ी नहीं सकता। नई सरकार आके जो केस है ऐसे वैसे केस है वो उसको कोई बात देखिए, अभी क्या है, कोई माँ बाप अपने बच्चों के में पक्षपात नहीं करना चाहेगा, बच्चे सारे एक ही होते। इसी तरह से देश के नागरिक जो हैं देश के बच्चे होते हैं। बिल्कुल। चाहे हमारे अभी मेरा भी बेटा बाहर देश में अमेरिका में मैं उसमें कोई फर्क तो नहीं समझ सकता। बच्चे होते। इसी तरह से
जो देश के नागरिक होते हैं, जिनका देश के साथ वास्ता है, जिनका खून देश के साथ जुड़ा हुआ है, जिनकी जिंदगी इस मट्टी से जुड़े, उनका लिए क्या हम राजनीति करेंगे? उसमें राजनीति करने वाली कोई बात ही नहीं है, और राजनीति करते भी है नुकसान है। तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी कोई भी आती है, ये चीज जिसमें हर बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि हमने ये दिया, हमने उनका ये ख्याल किया, हमने प्रवासी दिवस शुरू किया, हमने वो किया, हमने ये वाला कानून उनके लिए किया करके। क्योंकि हाँ, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया, देश के अंदर कोई भी जिम्मेवार आदमी का एक ना एक सदस्य या कई उसके परिवार के सदस्य जो हैं बाहर के देश में हैं, और कोई ये नहीं सोच सकता कि वो मेरे परिवार के साथ अच्छा से अच्छा सलूक होना चाहिए। वो यही सोचेगा कि अच्छा से अच्छा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राव साहब, एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। आपने बहुत सही ढंग से एनआरआई की प्रॉब्लम जो है सुनी है, जो मेरे जरिए सुनी है, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल और जो बेस्ट जो आपने बताया, एक मेरे को बहुत अच्छी लगी है जो आपने किताब जो है दिखाई है। तो अगर मैं तो यही चाहूंगा कि अगर वो अवेलेबल होती है तो वो हमारे लिए, एनआरआई के लिए, जो पढ़े लिखे जो यहाँ पे हैं, जो इसको पढ़ के अपना हक जो है इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हैं इजी वे। तो मेरे मैं एक चीज मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ, इसकी एक कॉपी और मिलती है तो मैं आपको डायरेक्टली एक कॉपी भिजवा दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जो आपने इतनी इज्जत जो है इस नाचीज को जो बख्शी है, तो आपका सदा ही ऋणी रहूंगा अगर आप ऐसा कर दे। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को भी जरूरत होगी तो मैं उसको पढ़ने के लिए उसको दे सकता हूं, कि वो एक जगह ना रहे, कि वो ऐसे चलती रहे जो किसी के काम आ सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इंडियन जो सॉलिसिटर वगैरह है, उनको भी अगर जरूरत पड़े तो वो मेरे से कांटेक्ट करके इंडियन लॉ के बारे में अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जो अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं, तो मेरे को खुशी महसूस होगी कि मैं उनको ये बुक दूं थोड़ा चिर पढ़ने के लिए। जो चीज उनके काम की है वो अपने पास उसको कॉपी को कर सकते हैं, रख सकते हैं, कि उनके कस्टमर को भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो, हमारा भी जो मैसेज है वो जनता तक जड़ा है पहुंच जाए। तो बहुत बहुत एक बार फिर आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल की गहराइयों से मैं करता हूं। किसी और प्रोग्राम में आपको जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि अब तो ऐसे लगने लगा कि मैं आपको पता नहीं सदियों से जानता हूं। क्योंकि कई बार होता कि मैं खुद डरता हूं कि इतने बड़े आदमी की इंटरव्यू जो ले रहा हूं, तो कई बार हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी इतने जो नहीं समझता कि मैं किसी की इंटरव्यू जैसे ले सकूं। पर कई बार होता है कि किसी के भले के लिए कोई काम करना हो तो फिर खड़ा ही होने पड़ता है। तो इसीलिए मैं खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है तो जरूर करना चाहिए। थैंक यू जी वेरी मच। आगे एक आखिरी बात मैं जो बताता हूं, मेरा सबसे पहले गुरुद्वारा में हुआ न्यूयॉर्क में। मैं सबसे पहले गुरुद्वारा का मैंने वो किया। मेरा पहली बार जब मैं गुरुद्वारा गया, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला था, मैं वहां न्यूयॉर्क गया था, तो वहां पे मैं सबसे पहले गुरुद्वारा में गया और मुझे वहां खाना खाने को मिला। और तो मैं, आप ये समझ सकते हैं मेरा कितना तजुर्बा है इन चीजों में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरू। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸਨ ਇਸ ਦੇ,
ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ NRI ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ NRI ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OCI ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ NRI ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ NRI ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ TV UK ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਜਰੀਏ ਜਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।